I can feel in my heart that Sanatana Dharma is a good philosophy for humanity to find peace. Ganga and the Yamuna, and my understanding is Krishna told Saraswati to hide. I took a dip this morning, wanting moksha, wanting liberty, wanting peace for all humanity. I mean, this is just an amazing thing. Only in India, only in Bharts, right? है कि जहाँ तक मुझे आइडिया, इस पानी को पवित्र माना जाता है इनके वेदों के अकॉर्डिंग। ये कौन से रिवर का पानी? ये 3 रिवर है जी बिल्कुल। हमारे इनका पिछले ऐसा ही वक्त। कंसेप्ट है जैसा हमारा मुस्लिम्स का कंसेप्ट है कि जब हम हाजी उम्रा करते हैं तो हमारे गुनाह माफ हो जाते हैं। इस तरह से इनका कंसेप्ट भी ऐसा ही है कि वो कि आपको मुकम्मल जानकारी नहीं है, आपको चीज़ें नहीं पता, तो आप क्यों ऐसी चीज़ों पे बोलते हैं। तो हमारा ये बिलीव है कि हम डिसरिस्पेक्ट ना करें। हाँ बिल्कुल। तो डिसरिस्पेक्ट के अलावा हम अपने जो हमें अंडरस्टैंडिंग, मेयर अंडरस्टैंडिंग है, वो शेयर करते हैं हम। हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। मेरा नाम है हसन, मेरे साथ है ज़कवान और ज़ीशान। तो आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि लास्ट टाइम हमने किया था एक वीडियो पे जिसमें हमने देखा था कि कुंभ मेला की मतलब बड़ा अच्छा रिस्पांस आया और काफी व्यूअर्स हैं उस पे। तो वो कुंभ मेला का हमने देखा था कि वो किस जगह पे होता है। वो दरअसल प्रयागराज, इस तरह से मेरा ख्याल है सिटी है, उसमें ये होता है ना, दरियाओं के पास। कौन सा सिटी है? प्रयागराज। प्रयागराज। तो उधर ये होता है, तो उसमें देखा था। फिर मुझे, क्योंकि मैंने, आप ये फीड वगैरह किस तरह काम करती है इंटरनेट पे कि जो चीज़ हम सर्च कर लें या देखें तो फिर उसके मुतालिक भी आपके आती रहती हैं फीड में। तो उसी से रिलेटेड मैंने गौर किया कि काफ़ी ज़्यादा फॉरेनर्स भी कुंभ मेला में पार्टिसिपेट करते हैं। तो उसमें एक इसी तरह की हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें सजेस्ट किया कि फॉरेनर्स से रिलेटेड उनके क्या इस पे व्यूज़ हैं, उन्होंने जो पार्टिसिपेशन की। तो हम उसी को देखते हैं कि फॉरेनर्स के इसके बारे में क्या व्यूज़ हैं। हमारे साथ जुड़े रहेगा, बड़ा दिलचस्प होने वाला है ये वीडियो, आप सबको मजा आएगा, हमारे साथ जुड़े रहे। I'm gonna cry. It's amazing. It's amazing to be here. I can feel in my heart that Sanatana Dharma is a good philosophy for humanity to find peace. Ganga and the Yamuna, and my understanding is Krishna told Saraswati to hide. I took a dip this morning. We came out at about 4 o'clock and we walked on the beach. And then we went back to our room and got our towels and we came out here and took a nice dip with all these wonderful people. I'm gonna cry. It's amazing. It's amazing to be here. God's mercy. Why you are crying? This is just such an amazing event to see so many people who are celebrating and wanting purification, wanting moksha, wanting liberty, wanting peace for all humanity. I mean, this is just an amazing thing. Only in India, only in Bharts, right? So, I don't know, what else can I say? In Sanatana Dharma, describe some word Some words about Sanatana Dharma? about Sanatana. Sanatana Dharma. Well, you know, when I first discovered, I was in a temple called the Temple of Kriya Yoga in Chicago 35 years ago. And I was introduced to the Bhagavad Gita. And then I have also now read some of the Srimad Bhagavatam, many of the Vedas. And I can feel in my heart that Sanatana Dharma is a good philosophy for humanity to find peace. It's really, it's moral, and it's about love, and it's about serving God, and we are missing this in our Western culture, especially. We are missing this part, and I think everybody could learn from Sanatana Dharma. What you say about Kumbh, Mahakumbh? Well, like I said, about 35 years ago, my guru, he told me, he mentioned Kumbh Mela, and I did not know what this was. But over the years, every few years I hear it's happening in India, and I thought, this would be a nice thing. So my husband and I, we came to India in October. We did not know this was happening. We went to Parmat Nikatan in Rishikesh, and we saw the sign. And so then we thought we should make arrangements. And of course, as you know, it's very difficult to make arrangements because everybody already made their plans. But we got one night here at here. So being here last night, we went to Arti. Arti was very nice. Bhajan, beautiful. Darshan, wonderful.
And again, all these people here who are here to celebrate this, I heard so many things, the Ganga and the Yamuna, and my understanding is Krishna told Saraswati to hide until the time was right. This is what I have been taught. And so here we have the three rivers coming together, the vortex. I don't know, it's magical. Magical. ठीक है, बोले कृष्णा ने हाय किया। लास्ट टाइम बताया था ना कि यहाँ 3 दरिया मिलते हैं, तो इसके पीछे एक मिथोलॉजी है, मतलब इसकी फिलॉसफी है कि उसमें से एक पार्ट वो बता रही हैं कि इसमें से एक मतलब मान्यता ये है कि कृष्णा ने सरस्वती, मेरा ख्याल है वो उनकी वाइफ थी या कुछ इस तरह से, कोई देवी थी सरस्वती, उनको उधर इस पानी में हाइड करने के लिए या प्रवेश करने के लिए वो कहा था। तो बाकी ये है कि जहाँ तक मुझे आइडिया, इस पानी को पवित्र माना जाता है इनके वेदों के और अकॉर्डिंग। ये मतलब कौन से रिवर का पानी? ये 3 रिवर हैं। अच्छा, इकट्ठा है? हाँ, गंगा, जमुना और एक और मेरा ख्याल है ये एक जो हम नीलम रिवर है कश्मीर में, उसे ये कहते हैं, हम इधर नीलम कहते हैं कश्मीर में, जो वो कहते हैं उसे किशन घाटी कहते हैं। हाँ नहीं, उसे कहते हैं किशन गंगा। किशन गंगा तो रिवर। ये उनमें से शामिल है? नहीं, ये मेरा ख्याल अलग अच्छा, ये है, अलग ये आगे यूपी की तरफ शायद है। ओके। चलो भैया, ये वैसे ही खत्म हो गई है, तो इस पे ये तो अच्छा है, मतलब वो मैंने देखा है कि यूके से आके और बड़े इम्प्रेस हुए हुए, वो कह रही बड़ा एंजॉय किया और इमोशनल भी है, जारी बात है। उन्होंने स्टडी किया और इस चीज़ को पढ़ के और उसके ऊपर पढ़ने के बाद आके उस इवेंट को आके इन्होंने एंजॉय किया। लेकिन हमने वो वीडियो भी देखनी है, वो जो ये एक पानी में नहाते हैं, शावर लेते हैं, और उसके बारे में हम एक वीडियो बनाएंगे। जो मैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया हुआ है कई बारी वीडियोस में कि मुझे ऑलरेडी हिंदुइज्म के कोर बिलीव्स और उसके बारे में मैंने कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा है, भगवत गीता और इस तरह से रिलेटेड। लेकिन जो मुझे समझ है, ये इसमें डिप करने को मतलब होली डिप समझते हैं कि यहाँ अगर हम इसमें डुबकी लगा लें, नहा लें, तो हमारे पाप धुल जाते हैं। जी बिल्कुल, हमारे इनका पिछले ऐसा ही वक्त। कंसेप्ट है जैसा हमारा मुस्लिम्स का कंसेप्ट है कि जब हम हाजी उम्रा करते हैं तो हमारे गुनाह माफ हो जाते हैं। इस तरह से इनका कंसेप्ट भी ऐसा ही है कि वो उस ऐसे इनका ईमान है जैसे वो उसमें वो नहाने को स्नान कहते हैं कि उसमें कोई स्नान करेगा तो उसके पाप जो है वो धुल जाएंगे। इस किस्म का इनका बिलीव है, इसलिए वो ये तो काम। बिलीफ हो गया ना, स्पेसिफिकली वो जगह क्यों? और ये मतलब किसी भी रिवर में ये इस तरह करते हैं तो नहीं, उसमें इस तरह नहीं, फिर किसी- क्वेश्चन हो सकता है कि स्पेसिफिकली जमजम का पानी ही क्यों, काबे से जो मक्का से निकलता है वो ही क्यों, इधर का क्यों नहीं? तो बिल्कुल। ये है कि उनके जो लिटरेचर कह ले, रिलीजियस लिटरेचर है, एक स्क्रिप्चर है, मखसूस चीज है जो उस स्क्रिप्चर में ये आ रहा है। उसके जो बड़े मानने वाले पंडित गुजरे हैं या ऋषि गुजरे हैं, जो इनके गुरु गुजरे हैं, उन्होंने ये बताया कि ये होली पानी है ना, तो इसमें डिप करने से आपके पाप धुलेंगे। तो ये उसके पीछे यही मान्यता है। तो इसमें मतलब जो भी आएगा कुंभ मेले में वो मतलब इस जगह पे आके ये करेगा। हाँ, उसे वो होली स्नान करने, इसीलिए तो ये लार्जेस्ट वो करते हैं कि क्योंकि एक तो इंडिया की आबादी बहुत है, लार्जेस्ट गैदरिंग है। तो वो गैदरिंग इसीलिए बड़ी होती है कि वो सारे अपने मतलब इस चीज पे बिलीव रखते हैं, तो वो अपने पाप धुलाने आते हैं ना। बिल्कुल सही तो है। ये तो चलो, ये तो एक हाँ, अगर हमने अक्सर कमेंट में ना हमें कुछ हेट भी मिलती है कि इस तरह कि आपको मुकम्मल जानकारी नहीं है, आपको चीज़ें नहीं पता, तो आप क्यों ऐसी चीज़ों पे बोलते हैं। तो हमारा ये बिलीव है कि हम डिसरिस्पेक्ट ना करें। हाँ बिल्कुल तो डिसरिस्पेक्ट के अलावा हम अपने जो हमें अंडरस्टैंडिंग, मेयर अंडरस्टैंडिंग है, वो शेयर करते हैं हम कि हमारी अंडरस्टैंडिंग में ये आया। अगर कोई करेक्शन हो तो वो आप कर सकते हैं, फीडबैक को हम पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन डिसरिस्पेक्ट ना हम चाहते हैं कि हम करें, ना हम एक्सपेक्ट करते हैं, और ना मतलब मैं व्यूअर से भी कहना चाहूँगा कि हम मुस्लिम कम्युनिटी से हैं। अगर कोई ये समझता है या ये उसका कंसेप्ट है कि शायद हम मतलब व्यूज़ लेने हैं, तो उसके सिलसिले में हम बढ़ा चढ़ा के, जो हमें मतलब दिल से ऑनेस्ट ओपिनियन हमारा नहीं भी है किसी चीज़ के बारे में, हम उसकी भी बढ़ा चढ़ा के तारीफ करें और वो झूठे ऐसे रिएक्शन दें कि भाई हमें तो ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बड़ा
बहुत बड़ा काम हुआ है। नहीं, हमारा ऑनेस्ट ओपिनियन होगा, हमें पता चले। जैसे हमने उसमें छावा के एक रिएक्शन दिया था अपनी वीडियो में, तो उसमें हमने बात की थी कि जो अगर मुगल एम्पायर में मुस्लिम नाम से भी किंग गुजरे हैं तो उन्होंने जुल्म किया, बुराई की, तो वो बुरा अमल है, उसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा। लेकिन हमसे ये भी एक्सपेक्ट ना किया जाए कि हम मतलब जो चीज़ हमारे समझ में ही नहीं आ रही कि ये किस तरह से हो सकता है, या कुछ हमारे बिलीव के, या कह लें कि हमारी अंडरस्टैंडिंग में, क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग डिफरेंट है, हमें इस तरह के कंसेप्ट से एक्सपोजर नहीं है। ये तो कह लें कि मैं थोड़ा मैंने कह लें टीन एज से गुजरा, तो मेरा एक इंटरेस्ट बनता गया। शुरू में मुझे मज़हब में इतना मजहबी ये जो रिलीजियस चीज़ें कंटेंट थी, इसको मैं ठीक नहीं था समझता। मैं समझता था कि ये लड़ाई झगड़े की बुनियाद है, इंसानों को डिवाइड करता है। लेकिन फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता सारे ऑलमोस्ट बाइबल को, भगवत गीता को, जो इनके हैं वेद हैं, उनका थोड़े बहुत अंडरस्टैंडिंग, लेकिन कंप्लीट नहीं, क्योंकि वो बहुत बड़ा है। मैंने सुना था कि जो भगवत गीता है वो वेद का निचोड़ है। मतलब आप कह लें कि अगर वेद है ना, वो हाईएस्ट वो स्क्रिप्चर है, उसकी समरी या प्रेसी कह लें, वो भगवत गीता है। उसको समराइज किया हुआ है वेदों को भगवत गीता में। तो इसलिए मैंने भगवत गीता को बेसिक थोड़ा सा उसको टच किया। तो इस तरह फिर मैंने इस्लाम को भी टीन एज के बाद ही एक्सप्लोर किया। तो उसमें जो मेरी अंडरस्टैंडिंग में आता गया वो मैं उसको ऑनेस्ट ओपिनियन के साथ समझता गया। तो इसी तरह अगर हमारा ऑनेस्ट ओपिनियन में हम समझेंगे कि ये बात ठीक है या कुछ डिसरिस्पेक्ट के अलावा, तो वो हम करेंगे। वरना अगर किसी को भी ये है कि हम व्यूज़ के लिए आपको खुश कर दें कि जी ये बहुत अच्छा, बहुत वो, तो इसके लिए फिर ये चैनल नहीं है। हमारी तो ज्यादातर जी ऑडियंस जो है वो इंडिया से है, जो हमने देखा है। बिल्कुल। उसमें हम मतलब किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहते हैं, और कभी भी हमारी किसी बात को आप अपने धर्म पे ना लेके जाइएगा कि हम उसके खिलाफ बात हाँ, कह रहे हैं। हमारी इंटेंशन नहीं होगी हमारा डिसरिस्पेक्ट ये की, शायद हमें पता ना चले कि हम रिव्यू इस तरह की कोई बात कर और रहे हैं। ये रिएक्शंस देने का मकसद ये है कि ये सारी चीजें जो हो रही हैं, क्योंकि हमारा बॉर्डर का सिर्फ फर्क है, तो हम हमारे यहाँ शुरू से बॉलीवुड देखा जाता है, और इंडिया में भी पाकिस्तान का जाहिर बात है देखा जाता होगा, और देखा भी जाता है, लोग लाइक भी करते हैं, मैं देख रहा था कमेंट्स देख। बिल्कुल। तो हम लोग अब उन चीजों को जरा रिएक्शन देना चाह रहे हैं, और उस रिएक्शन का मतलब है कि आप लोग हमारी मदद करें। जो चीज हमें सही नहीं पता, आप लोग नीचे लिखें उस चीज को, और हमारी बातों को आप पॉजिटिव लें। हमारा मकसद बिल्कुल भी हमारी पूरी टीम का मकसद आप लोगों की दिल आजारी करना नहीं है। आप लोगों की सपोर्ट से ही मतलब हम लोग डे बाय डे एक नए कंटेंट के साथ आ रहे हैं, और हम लोग कोई प्रोफेशनल नहीं है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बेहतर से बेहतर हो के, और उसके लिए आप लोग भी हमें सजेस्ट करें और हमें सपोर्ट भी करें, और आप लोग करते भी हैं। तो हमारा ये व्लॉग और रिएक्शंस का सिलसिला जारी रहेगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। दोबारा हाजिर होंगे एक नई स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तो आप सबका शुक्रिया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट्स तो आप करते ही हैं, और उसमें हमें पॉजिटिव कमेंट्स करें, ताकि जो भी देखे तो उससे इंसानियत को मतलब एक नॉलेज मिले। ये नहीं कि हम बाइस्ड होके अपने रिलीजन को लेके और उसको एक पॉजिटिव उसमें ले। हाँ, जो कंपैरिजन में अगर कोई ऐसा कंसेप्ट आता है, जैसे जिशान ने अभी बात की कि हमारे मजहब में भी वो हज है, उम्रा है, जिससे हमारे पाप धुल जाते हैं। तो ये एक कंपैरिजन में मतलब कुछ बंदे होंगे जिनको नई कंसेप्ट पता होगा, तो हमने मुस्लिम पर्सपेक्टिव उनको बता दिया। इसी तरह हम वीडियोस देखते हैं, तो हमारे थ्रू जो पाकिस्तानी अवाम जिनके दिलों में अगर नफरत है किसी भी तरह से, और अगर किसी हमारे हिंदू भाइयों में इंडिया में किसी हमारे लिए नफरत है, तो वो शायद इसको अंडरस्टैंड करे कि हम दोनों एक ही हैं। मतलब हमारा अगर जियोग्राफिकल थोड़ी लाइन को हटा दें, तो हमारा ऑलमोस्ट कल्चर और चीज़ें, ज़ुबान एक तरह से है। तो इसको मेरा ख्याल है अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव में लेना चाहिए, इस पर्सपेक्टिव में नहीं कि हम आपको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं या आप हमें कन्वर्ट कर दें। तो इस चीज़ का ये मकसद नहीं है। इतना सा टाइम लगता है और बंदा इस जहान से खत्म, ऐसा ही। और वो उसकी आंख बंद हो गई तो कोई भी नहीं खोल सकता। पता नहीं वो कब खुलेगी, रोजे कयामत जाके खुलेगी। तो ये जो मुख्तसर सी जिंदगी है ना, इसमें खुश रहें और पॉजिटिव रहें, और हमारी कोशिश होती है, और हमारा ये है कि जितना टाइम हम आंख हमारी खुली है तो एक अच्छे तरीके से हम गुजार। बात की किसको क्या खबर है, तो हमारे साथ जुड़े रहेगा, बड़ा मजा आएगा। इंशाल्लाह एक नए वीडियो के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया। और हम अपने आप को कैसे इम्प्रूव करें, ये हमें सजेस्ट करें। शुक्रिया।